Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In today's video of class 10th geography, you are going to learn the NCERT question answers of chapter water resources. The first question of this chapter is based on the information given below. You need to classify the situation as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. So here the first option is a region with high annual rainfall. एक ऐसी जगह जहाँ पे साल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो कैसा रीजन होगा आपका? दैट इट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी. जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे तो पानी की कमी नहीं होगी ना. सेकेंड इज़ अ रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बट वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, इट विल बी सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है सो उनकी वाटर नीड्स भी ज़्यादा होंगी. थर्ड पार्ट इज अ रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड. एक ऐसी जगह जहाँ पे साल में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है बट वहाँ का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, सो इट विल बी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी. नाउ द डी पार्ट इज अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन. एक ऐसा रीजन जहाँ पे कम रेनफॉल होती है और लो पॉपुलेशन है. दैट रीजन विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो वाटर की डिमांड्स भी कम होंगी. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. अब इसके अंदर से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना. ए है आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी. बी इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स. C is multi-purpose projects lead to large-scale displacement of and loss of livelihoods, and D is multi-purpose projects generate electricity for industries. अब इनमें से कौन सा correct है, that you need to choose. So its correct option is C, that multi-purpose project led to large-scale displacement and loss of livelihood. Third part is here are some false statements. Identify the mistakes and rewrite them correctly. अब यहाँ पे जो आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं ये इनमें कुछ गलती है, आपको वो गलती को करेक्ट करके इनको दोबारा लिखना है. मल्टीप्लाइंग सो द फर्स्ट इज मल्टीप्लाइंग अर्बन centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources. B is regulating damming of rivers does not affect the river's natural flow and its sediment flow. C is in Gujarat Sabarmati Basin. Farmers were not agitated when higher priority was given to the water supply in urban areas, particularly during drought. D part is today in Rajasthan the practice of rainwater harvesting, rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability due to the Indira Gandhi Canal. अब बच्चों यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है. इस मिस्टेक को करेक्ट करके आपने इनको दोबारा लिखना है. अब बच्चे आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इन फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके आपने इनको दोबारा लिखना है. ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए इनको हम दोबारा लिखते हैं इनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करके. सो द आंसर इज multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have resulted in improper utilization of water resources. B part is regulating and damming of rivers does affect the river's natural flow and its sediment flow. C part is in Gujarat Sabarmati Basin farmers were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during drought. D part is today in Rajasthan practice of rooftop rainwater harvesting popularity has declined due to high water availability from Indira Gandhi Canal. The second question is answer the following questions in 30 words. अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं इनको 30 वर्ड्स में आंसर करना है. इसका फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. हम पानी को एक रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? इस आंसर इज वाटर कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स सिंस देयर विल बी रेन्स एंड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर विल गेट रिचार्ज कंटिन्यूसली ड्यू टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि सबसे पहला इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड थर्ड इज योर प्रेसिपिटेशन. अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जो धरती है वो हमारी 70% वाटर से तो कवर्ड है, 70 to 75%, बट वो खारा पानी है
और पीने के लिए हमारे जो यूज़ के लिए पानी बचता है वो बहुत ही कम है। तो फिर भी हम वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बारिश आती है उसकी वजह से सरफेस वाटर जो है और सरफेस वाटर की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? दैट वाज ड्यू टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे है? उसके अंदर 3 प्रोसेसेस रहते हैं। जैसे समुद्र का पानी इवेपोरेट हो रहा है, फिर वो कंडेंसेट होगा और वहीं से प्रेसिपिटेट होगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो भाप बन के उड़ेगा, कंडेंसेट होगा और वो बादल जो हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके बारिश करेंगे और ग्राउंड वाटर जो है वो आपका दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। सो इट्स आंसर इज water scarcity is the shortage of water, but it is not only associated with region having low rainfall or those that are drought prone. The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by overexploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट फिर भी वाटर स्कैर्स क्यों है? पानी की कमी क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ रीजंस के अंदर जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ की नीड्स पानी के लिए पूरी नहीं हो पाती हैं, या फिर अगर किसी सीज़न में बारिश कम हुई तब भी वहाँ पर जो है पानी की कमी रहेगी। और कई सारी केसेस के अंदर क्या है कि लोग जो हैं पानी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का, या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर। अलग अलग सोशल ग्रुप्स का मतलब है जैसे रिच एंड पुअर्स के अंदर हम बोल सकते हैं, या फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनके अकॉर्डिंगली हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हर बंदे के पास में उतनी रीच नहीं है पानी की। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बतानी है। सो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। इट्स एडवांटेजेस आर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन, इनलैंड नेविगेशन। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है? उसकी वजह से आसपास के एरिया को इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो आप डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके, पानी जो है उससे बाढ़ ना आए उसको आप पहले कंट्रोल कर सकते हो। अब वाटर सप्लाई जो है कई सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, या आसपास के लोगों को रिक्वायर्ड है। वो जब जब बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उनके पीछे जो है बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं, उसके अंदर जो है कई सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इट कैन बी अ प्लेस फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस जो इन प्रोजेक्ट्स की हैं। सो द डिसएडवांटेजेस आर द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इज अफेक्टेड, सेकेंड इज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड, थर्ड इज सबमर्जेंस ऑफ लैंड इन द सराउंडिंग एरियाज, फोर्थ इज इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, फिफ्थ इज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। अब यहाँ पे क्या है, जब जिस एरिया के अंदर डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो उसके आसपास का जो पीछे का रीजन होगा जहाँ पे रिजर्वॉयर बनाया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है लैंड का वो सारा पानी के नीचे सबमर्ज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है, आसपास का लैंड का नुकसान ही है लोगों का। अब जब लोग वहाँ से मूव करेंगे तो लोगों को भी कितने सारे नई जगहों पे शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर क्योंकि वहाँ पे एक्वेटिक जो लाइफ है वो एक्वेटिक लाइफ भी इनकी वजह से, यानी कि जो मछलियाँ हो गए, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको भी इससे फ़र्क पड़े। अलावा जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसकी वजह से। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट नाउ यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स of Rajasthan is carried out. Its answer is in semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi, Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. The tankas were part of well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. अब यहाँ पे क्या है, जो राजस्थान के कुछ सूखाग्रस्त इलाके हैं जैसे कि बीकानेर हो गया, फ्लोडी हो गया और
बरमेर हो गया। यहाँ पर क्या है, पहले के वक्त से ही बारिश के पानी को इकट्ठा करके घरों के बीच में या फिर उनके आंगन के अंदर एक बड़ा सा रिजर्वॉयर बनाया होता था उन्होंने। स्टोरिंग टैंक के अंदर वो जो है छतों से आने वाला पानी जो ऐसे वेस्ट जाता है, वहाँ पे वो पाइप के थ्रू उस टैंक के अंदर जाता था और उसको जब पानी बारिश वगैरह नहीं होती थी उस पानी को यूज़ किया जाता था। इसी फर्दर आंसर की कंटिन्यूशन के अंदर है, द फर्स्ट स्पेल ऑफ वाटर वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस कुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स. The rainwater from the subsequent showers was then collected. The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers. It is considered purest form of natural water. अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब पहली बारिश के बाद में छतें और पाइप वगैरह क्लीन हो जाते थे तो उसके बाद के पानी को वो स्टोर करते थे उन टैंक्स के अंदर। अगली बारिश होने तक उसी पानी को यूज़ किया जाता था पीने के लिए या बाकी कामों के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब आसपास के और रिसोर्सेज से पानी नहीं मिलता था तो गर्मियों में यही एक साधन होता था उनके पास पानी का, और इस पानी को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर भी माना जाता है, जो रेन वाटर उन्होंने स्टोर किया होता है। अब ये जो है आपने देखा होगा इस टाइप से घरों के पहले के टाइम पे होता था। दिस इज़ द ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप। यहाँ पे इसके थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जाता था। एंड दिस इज़ कि एक घर के ऊपर जैसे छत पे जो भी बारिश का पानी आ रहा है उसको ऐसे करते हुए पाइप्स के थ्रू नीचे या तो टैंक बनाया होता है या फिर उसको ग्राउंड वाटर के अंदर कर दिया जाता है ताकि वो ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज हो जाए। और ये जो है वो आपका ट्रेडिशनल मैथड है जिसके थ्रू जो है दीज आर टैंक्स, ठीक है ना, इसके थ्रू ही जो है वो रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। और जिस वक्त बारिश नहीं है या कुछ भी नहीं है तो यहीं से पानी को यूटिलाइज़ किया जाता था। ये ऊपर ढक्कन इसीलिए है ताकि ये पानी के अंदर कोई भी धूल मिट्टी न जाए, पानी साफ बना रहे। और इस ढक्कन का एक और पर्पस रहता था कि पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। अभी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न तरीकों में किस तरीके से किया जाता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। इन गंथूर village, Mysore, about 200 households have adopted the rooftop rainwater harvesting method, thereby making the village rich in rainwater. The state of Tamil Nadu has made it compulsory for all the houses to have rooftop rainwater harvesting structures. अब यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे आपको मैसूर के गांव का नाम के बारे में बताया गया जहाँ पे लगभग 200 घरों ने अपनी छतों के ऊपर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया। इसी की वजह से ये गांव जो है वो बारिश के पानी से बहुत ही रिच गांव बन गया, क्योंकि उनके पास संसाधन पानी का बन गया। पूरे साल पीने के लिए पानी होगा और भी बाकी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास पानी होगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु की स्टेट है, तमिलनाडु ने कंपलसरी किया कि सभी घरों के ऊपर जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। अब बच्चा हमने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स तो कर लिए, बट आपने स्कूल में चैप्टर भी पढ़ा होगा। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस टाइप के क्वेश्चंस करें। कई बच्चे ट्यूशन्स नहीं भी करते हैं तो उनके पास असाइनमेंट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। इस बुक के अंदर आपको जो है चैप्टर वाइज आपके मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज जो है वो वर्कशीट्स दी हुई हैं। हर चैप्टर की 2-2, 3-3, 4-4 वर्कशीट्स भी हैं किसी चैप्टर की। तो उसके अकॉर्डिंगली आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आता है, क्योंकि इस बुक के अंदर कम्प्लीटली वर्कशीट्स हैं। और इसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। और ये उन सब बच्चों के लिए जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, सेल्फ टेस्ट के लिए कोई बुक देख रहे हो, तो ये उन सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक का प्राइस भी क्वाइट अफोर्डेबल है। अगर हम देखें 3 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली ये बुक आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल जाएगी। इस बुक को परचेज़ करने के लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं, तो आप जाके इस बुक को चेक कर सकते हो। जहाँ पर इस बुक के अंदर आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। हर एक चैप्टर की प्रोग्रेस चेक हैं, 2-2 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड प्रोग्रेस चेक हैं। फिर आपके कंप्लीट उस बुक के टेस्ट पेपर्स हैं। और आपकी अच्छी बोर्ड प्रैक्टिस के लिए तो ये बुक सबसे मस्ट है आप लोगों के पास होनी। आपके तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और इस बुक को परचेज़ करने के लिए लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग CS एडिटोरियल।